warriors, welcome back to my channel. I hope you all are doing good. So, today on Children's Day special, we are shooting with the one and only awesome Avantika. So, let's begin and start. Hi Avantika, how are you? I'm fine. Okay, so on the occasion of Children's Day, मैं आपके साथ एक वीडियो बना रही हूँ कि अभी बहुत सारे सिचुएशंस हो गए हैं लॉकडाउन के, कि लॉकडाउन हो गया है, कोविड क्राइसिस हो गया है. सो बीइंग अडल्ट हमें ही बहुत ज़्यादा सिचुएशन को कैसे फेस करना चाहिए, क्या हर्डल्स थे, हमें खुद को ही बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक चल रहा था. बट you as a young kid, you have so much of energy within you, and how you spend your energy, how you dealt with this whole situation, we are going to ask all these questions in this video. So are you ready? Yes. Are you ready? Yes. Very good. So just give me a big smile from your side and let's begin. Okay. So let me start from the basic questions ताकि आपको भी comfortable हो और हमारे audience को भी comfortable हो. So please आपका introduction दे सकते हैं? Yes. So my name is Avantika. I'm studying in 5th standard. और मेरे स्कूल का नाम सेंट जॉन्स हाई स्कूल है. तो मेरे हॉबीज़ जैसे सिंगिंग, डांसिंग और कराटे करना बहुत पसंद है. जैसे और मुझे मेरे टाइम में स्पेंड करने के लिए मुझे एक्सपेरिमेंट्स करना बहुत पसंद है. और ऐसे Okay, thank you so much Avantika. So let me start you with simple and basic. Like you told me कि आपका hobby singing and dancing है. So ये किसका आइडिया था यूट्यूब चैनल क्रिएट करके आप उसमें परफॉर्म कर रहे हो? ये किसका आइडिया था बेसिकली, आपका या आपके पेरेंट्स का? माय पेरेंट्स और मेरा भी. Okay, so your parents will be so supportive of you. Yes. Very good. हमें याद है कि हमारे स्कूल के टाइम पर when I was a kid, we used to wait for annual days and some occasions in school, so we have to perform. But today for your generation it is very cool. You can do, of course it is so much of hard work, but you don't have to wait for giving someone opportunity. So how you feel to be the kid of this generation, of this digital era? I feel good, but little bored in this situation because of COVID. That's it. No, my question is about कि digital, you might don't know because आप सिर्फ 10 साल के हो, पर जब एक अभी तो आप लॉकडाउन में हो तो इतने सारे डिजिटल हम देख सकते हैं. अब अभी कुछ भी पॉसिबल है डिजिटल के वजह से. एंड व्हेन वी वर किड्स, मतलब हम जब छोटे थे तभी ऐसे बहुत ज़्यादा रेयरली कंप्यूटर्स थे. So when I was a kid, we used to watch, we had only one lecture of computer and we used to go for there and draw something on notepad and everything. But today at your age, people know how to do all the things, how to handle laptops, mobile phones and everything. Yes. So how you feel about that? Like so much of exploration and explore
करने मिल रहे हैं आपको इतने सारे, और जो बड़े बड़ों को नहीं आता है, यू माइट नो कि आपके ग्रैंड पेरेंट्स को वगैरह नहीं आता है बट आपको आता है. सो हाउ यू फील अबाउट दिस? Yes, I feel good because my miss is also teaching that also, so I know that things. Okay, cool. So my next question is, Yes. what kind of a child you are? मतलब आप बहुत ज़्यादा शांत रहती है, बहुत ज़्यादा नॉटी है, बहुत ज़्यादा पढ़ाई करती है, कौन से टाइप के आप बच्चे हो? हाँ, मैं कभी कभी क्वाइट रहती हूँ और कभी कभी मतलब मस्ती, और कभी कभी ऐसी नॉडी. So you are a mixed type, Yes. mixed personality. Yes. Very good. So you are balancing everything. Very nice. So आपको तो पता ही है कि अभी करंट सिचुएशन कैसे चल रहा है, और उसके रिलेटेड मुझे आपसे थोड़े से क्वेश्चंस भी पूछना है, क्योंकि एज अ अडल्ट्स हमें ही ये सारा सिचुएशन, ये कोविड क्राइसिस को प्रोसेस करने के लिए ही बहुत ज़्यादा टाइम लगा. हमें घर रह के ही फ्रस्ट्रेशन हुआ. ऑफ कोर्स सीरियल्स, नेटफ्लिक्स एंड अमेजन प्राइम वीडियो तो है, बट स्टिल you people, young people have so much energy within you and you need to like take out, है ना. आपको खेलना कूदना ये भी ज़रूरी है. ऑफ कोर्स कितना देर बैठ के भी देख सकते. तो आपके दिमाग में आपको कैसे प्रोसेस किया आपने जब आपको पता चला कि लॉकडाउन है और घर पे बैठना है? तो आप जब घर पे थे तो कैसे प्रोसेस किया आपने कि आप बाहर नहीं जा सकते? तो आपने कैसे सोचा, क्या करके आपने आपको खुद को समझाया? मतलब पहले तो अच्छा लगता था क्योंकि मेरे पेरेंट्स ने टैबलेट ला के दिया था, तो इसलिए फिर थोड़ा सा बोरिंग लगने लगा. तो क्या किया आपने जब बोर हो रहे थे? तो तब ऑनलाइन क्लास था, सब कुछ ऑनलाइन में था, जैसे कि कराटे, सिंगिंग, डांसिंग, सब कुछ ऑनलाइन था. तो वैसे एंजॉय. ओके. सो जब आप फ्रस्ट्रेट होते थे कि आप बाहर जाके अपने फ्रेंड्स को नहीं मिल सकते थे, आप कुछ कर नहीं सकते थे, तो फिर आपने क्या किया? तभी अपने आप को कैसे समझाया? मतलब तब थोड़ा सा बुरा लग रहा था. इसके बाद समझ में आया अभी कोविड है तो किसी दोस्त और फ्रेंड्स को नहीं मिल सकता था, इसलिए तभी समझ में आया हमको. सच्ची बताना, क्या आपने ज़िद किया अपने पेरेंट्स को बाहर जाने के लिए? हाँ, थोड़ा. उसके बाद थोड़ा सा डर लग रहा. सो क्या आपके आजू बाजू में हुए हैं केसेस? हाँ, हुआ है, 2-3 हो गए केसेस. अच्छा. तो जब ये हुआ है, आपको पता चला, तो आपने कैसे वो, मतलब कैसे लग रहा था आपको? बहुत डर लग रहा था, या फिर आप क्या प्रिकॉशंस ले रहे थे, या फिर क्या कर रहे थे आप? हाँ, थोड़ा सा डर लगता है ना, तो मतलब वैसे कंट्रोल किया. घर पे बैठ कर सब कुछ काम करना था, इसीलिए प्रिकॉशन सब कुछ किया. सो आपका इनिशियल रिएक्शन तो आपने बताया कि आपको बहुत अच्छा लगा, फिर बाद में थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन हुआ ये लॉकडाउन के क्राइसिस के बारे में. तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि आपने अपने हॉलीडेज़ कैसे स्पेंड किए? मतलब ये काइंड ऑफ हॉलीडेज़ ही है, लॉकडाउन था बट काइंड ऑफ हॉलीडेज़ ही था. सो आपने ये कैसे स्पेंड किया? क्या नया सीखा आपने? मतलब बहुत अच्छा था, पर थोड़ा सा बुरा भी लग रहा था. और मैंने मेरे पापा के साथ कैरम्स खेला है, चेस खेला है, बहुत सारे खेल खेले हैं ऐसे. और मेरी मम्मी को हेल्प करती हूँ किचन में, ऐसे सो आपने किचन में काम करना या वो नया सीखा? तो आपने किचन में काम थोड़ा बहुत काम सीखा, या फिर कुछ नया आर्ट फॉर्म सीखे, या फिर कुछ नए स्किल्स?
तो हाँ। आपने कौन से नए स्किल्स सीखे इस लॉकडाउन में? मतलब खाना बनाया थोड़ा थोड़ा ऐसे। ओके, सो आपको कौन सा फेवरेट है डिश आपका? फेवरेट डिश मेरा साबूदाना वड़ा। वाह, एंड केरला का डिश? सद्या। सत्य। ओके, आई डोंट नो अबाउट इट, बट मैं आपके घर आके खाऊंगी ज़रूर। ओके। सो अभी इस लॉकडाउन के वजह से आपको स्कूल जाना नहीं मिल रहा है, तो आपको कौन सा पहले ये पूरा प्रोसेस जो है लर्निंग डायरेक्टली शिफ्ट हुआ है ऑनलाइन में। सो बीइंग अभी आप 10th स्टैंडर्ड हो तो फिफ्थ क्लास में होंगे, सॉरी आप 10 इयर्स के हो तो आप 5th क्लास में होंगे शायद। सो अभी 5th तक आप फिज़िकली जाके अटेंड करते थे, अभी डायरेक्टली शिफ्ट हो गया ऑनलाइन में। तो आपको कैसे लग रहा है कि क्या कौन सा अच्छा लग रहा है, ऑनलाइन वाला या फिज़िकल वाला? मैं दोनों कंपेयर नहीं कर सकती, पर थोड़ा सा मुझे स्कूल अच्छा लगता है। ओके, और क्यों अच्छा लगता है आपको स्कूल जाना? क्योंकि स्कूल में हम फ्रेंड्स को देखते हैं और पीटी जाते हैं, और हमारा दूसरा एक्टिविटी भी रहता था। सो क्या आपके बिगेस्ट हर्डल्स है ये ऑनलाइन लर्निंग्स में? आप रिपीट कर सकते हैं क्वेश्चन? या श्योर। सो आपके बिगेस्ट हर्डल्स क्या थे इन द प्रोसेस, इन द ऑनलाइन क्लासेस में? ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करने में क्या आपके बिगेस्ट हर्डल्स थे? हर्डल्स के मीनिंग नहीं पता मुझे। हर्डल मतलब कौन से प्रॉब्लम्स फेस किए आपने? मतलब हाँ, बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेस किए हैं। अभी हम ऑनलाइन क्लास में जाते हैं तो नेटवर्क इशू का प्रॉब्लम रहता है, पर जब हम स्कूल जाते हैं तो वैसा प्रॉब्लम नहीं रहता। बट क्या आप ऑनलाइन क्लास स्टार्ट करके सो जाते हो? नहीं। कम ऑन, हमने भी आई एम ऑल्सो स्टूडेंट ऑफ MSc एंड गॉड हमारे टीचर्स ना देखे, बट मैं भी करती हूँ, तो यू कैन से इफ इट इज़ यस। No, I'm not sleeping in the online class. Okay, so you are a good student. Yes. It's good. So आपको कौन सा इजी वे में लग रहा है? मतलब अभी इतना ज़्यादा फिज़िकली जाना, उधर बैठना, फिर बाद में स्कूल से मतलब स्कूल से हमें लीव भी जल्दी नहीं मिलता है, हमें प्रिंसिपल का साइन, टीचर का साइन मिलता है। बट इफ़ यू आर नॉट गुड, इफ़ यू आर नॉट फीलिंग गुड, तो हम ऑनलाइन क्लास अटेंड नहीं कर सकते हैं। देयर इज़ अ प्लस पॉइंट फॉर ऑनलाइन क्लासेस एज वेल। सो आपको कौन सा ज़्यादा ईजी लग रहा है कि, और कौन सा फ्यूचर में होना चाहिए ज़्यादा, ऑफलाइन या ऑनलाइन आपके हिसाब से? Offline. ऑफलाइन। Yes. ओके, एंड कैन यू गिव सम रीज़न टू सपोर्ट योर आंसर? हाँ, वैसे ही मैंने अभी बोला ना, फ्रेंड्स के साथ पीटी, स्विमिंग, वैसे सारी एक्टिविटीज़ थे जो हमें मज़ा लगता था। हम क्लासरूम में बैठ के मूवीज़ मतलब पीपीटी देखकर ऐसे मूवीज़ देखते थे, बहुत मज़ा आता था। Yes, that's for sure. We can't say no to friends and their gossips. So, तो आपको पता भी है कि इस कोविड के क्राइसिस के वजह से बहुत सारे लोगों ने, जैसे हम मुंबई में रहते हैं, तो मुंबई से या फिर मेजर जो सिटीज़ है उससे लोग जाके अपने टाउन, अपने नेटिव प्लेस गए हैं। उधर ना ज़्यादा इंटरनेट है, ना ज़्यादा नेटवर्क आता है, तो वो लोग कैसे
cope up कर रहे हैं with online studies, and you might have some friends who 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 have gone to the native places. So what is their view, and what should we do? Means their network is slow, and I feel bad when they don't have network. But Miss make video for them and send it to them if they don't have network, so Okay. that the network can come afterwards and they can watch the video. Okay, so that's a very good idea. We don't have it in our college. Well, now I have came to my native town for some reason, and here there is no network at all, and I am just not attending my lectures. So you know, I'm kind of a bad student. And tell me, have you thought about your aim? What is your life's aim and your passion? Something. My passion is to become a doctor Okay. So, because yeah. to treat my mom and dad, and they like me to become a doctor. That's why. Okay. So, your is it from your own? Is मतलब आपको पता है कि inner voice होता है? So, is it from your inner voice, or is it your parent? Is your mom and dad told you to be a doctor? मेरे पापा और मम्मी ने बोला। Okay, sure. So it's okay if you are a doctor, it's well and good. And अगर आप बड़े होके आपकी माइंडसेट भी चेंज हो रहा है तो आई एम श्योर कि आपके पेरेंट्स आपको सपोर्ट करेंगे. And do you want to give some message to the young kids who likes singing, dancing, and who wants to be a YouTube to perform in YouTube? Because not everyone want to be like a YouTube star, but they have that inner feeling to do something in arts. So what you want to say? I can't hear you because of network issue. So can you repeat again? Okay, I will repeat it. So I'm saying yes. So मैं आपसे क्या पूछ रही हूँ कि आप अभी 10 इयर्स के हो और यूट्यूब आप कर रहे हो साइड बाय साइड. सो आपके स्टडीज़ पे इफ़ेक्ट होता है क्या? आप किसको ज़्यादा प्रेफरेंस करते हो, स्टडीज़ या एक्स्ट्रा करिकुलम को? स्टडीज़ में ज़्यादा ध्यान, क्योंकि अगर हम सिर्फ यूट्यूब भी करते रहे तो हम उतनी जल्दी हमें पैसा भी नहीं मिल सकता शायद से. तो हम जितनी वीडियो बनाएंगे उतना पैसा मिलेगा हमें पता नहीं. तो इसीलिए मैं स्टडीज़ में ज़्यादा ध्यान करूँगी, क्योंकि स्टडीज़ करते हम बड़े होंगे और पैसा कमाएंगे. ओके, कूल. सो आप यूट्यूब पैसा कमाने के लिए कर रहे हो या फिर आपकी हॉबी है, या फिर क्या आप किस लिए कर रहे हो? मेरी मेमोरीज के लिए. वेरी गुड, वेरी नाइस. मेमोरीज के लिए, दैट्स वेरी ऑसम आंसर. मैंने आपके डांसिंग वीडियोस मैं देखने वाली थी, बट अनफॉर्चुनेटली मैं नहीं देख पाई बिकॉज आई हैड सम वर्क. सो चैनल इन द डिस्क्रिप्शन सो पीपल can go there and watch your videos. And last question I want to ask कि आपको आप इतने छोटे से मतलब छोटा नहीं बोलना चाहती, बट आप इतने यंग एज में
आप स्टडीज़ और यूट्यूब कर रहे हो, सिंगिंग, डांसिंग, कराटे भी कर रहे हो, एंड आई होप कि आप और कुछ सीखें, इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह। आप केरला से हो, सो यस। आई नो फॉर श्योर कि केरला वाले इज़ मल्टी टास्किंग पीपल and they are multi talented. I have my own friends